Hello everyone. Let's continue with the next machine that is construct the minimal DFA. Construct the minimal DFA where where string length string length is at least string length is at least 2. Okay, so we can say string length is at least 2. That can be written as length of w is a string whose length is greater than equal to 2, right? So w is what? W is a string whose length is greater than equal to 2, and w belongs to a comma b. So these are the two alphabets. W belongs to a comma b. So these are the two alphabets. Then try to construct the minimal DFA. Try to construct the minimal DFA. आई थिंक ये होमवर्क क्वेश्चन था, और इसमें कितनी स्टेट आ रही हैं आप लोगों की? हाउ मेनी स्टेट्स देयर शुड बी? 2 state. Okay, I think in 2 state it is not possible. Yeah, state 3 state that may be possible. Yes, 3 state may be possible. Okay, let me solve. So for this language, what are the string in the language? What are the string in the language? We can say language equal to, it is a length of w that should be greater than equal to 2, means it is at least 2, and here alphabets are a and b. So what can be the string? We can say string, it is a aa, it can be bb, it can be ab, or it can be ba, or next it can be triple a, triple b, a double b, a ba, a bb, and after that b, or we can say aba, b double a, bab, bba, bab, and so on, right? So these are the string that belongs to the language. These are the string belongs to the language. Okay, now we can construct the machine. Okay, so we can construct the machine now. How to construct the machine? Let's see. So first thing, we'll try for the acceptance of the minimal string. Okay, we'll try for the acceptance of minimal string. So these are the minimal string, and we'll look about the acceptance of these string. Let's see. So here, this is what a state a, state, first state we can say initial state. Okay, this one is the initial state, and we are looking for acceptance of aa. So from this one, by reading a, it is going to state, next state we can say this is the state a, this one is state b, and next this is what the state c, and this is the final state. Then by reading a, it is going to the final state, means there is a acceptance.
ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्या हो रही है यहाँ पे, एक्सेप्ट हो रही है, राइट। नेक्स्ट थिंग विल लुक अबाउट द acceptance of bb or we can say ab and we can say ba. So by observing this one we got that here if we take b and here if we take b it will accept bb also, right. So by reading b from this one and b from this one it will go to final state and accept. ओके इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेप्ट कर रहा है क्या, ए को एक्सेप्ट करेगा। ए को कैसे एक्सेप्ट करेगा, लेट्स सी। देखो यहाँ से स्टेट ए से ए रीड करके कहाँ पे, स्टेट बी पे जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से ए रीड करके सी पे जा रहे हैं, और सी क्या है, फाइनल स्टेट है। इसका मतलब फाइनल स्टेट पे क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। इसका मतलब स्ट्रिंग ए क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। उसके बाद व्हाट अबाउट बी बी मीन्स यहाँ पे ए कोमा बी, इसका मतलब ये हुआ या तो ए को रीड करके जाएंगे या फिर बी को रीड करके जाएंगे। तो यहाँ से क्या कर लिया हमने, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया और यहाँ से हमने बी रीड किया, और बी रीड किया, यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, बी रीड कर लिया। तो इसका मतलब बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद क्या चाहिए, ए बी, तो यहाँ से ए रीड करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, बी रीड करेंगे, ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बी रीड बी ए के बारे में देखेंगे। तो बी ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बी रीड करेंगे और यहाँ से ए रीड करेंगे, ठीक है। और फाइनली कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से बी ए इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। ओके सो प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट। Okay, clear, fine. So let's see the next thing. Next thing is what, next thing we can say here, after accepting aa bb ba and all, what will happen, we'll look for the next thing, that is a after aa or after bb or after ab or after ba बी ए इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो बी ए इसके बाद, इन सब के बाद क्या हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। सो इनके बाद क्या आ सकता है, कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, राइट। तो ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, विल टेक द लूप ऑफ ए बी। तो इसके बाद क्या हो सकता है, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, इट मीन्स विल टेक द लूप ऑफ ए बी। और इस लूप का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैंने ये वाला लूप लिया ए, तो इसका मतलब ये होता है एक लूप ए का हो गया और एक लूप किसका, बी का हो गया। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये सी और ये सी दोनों सेम है, राइट। तो इसका मतलब ए को कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और कोई कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। पहले इसको ए को रीड करेंगे, ठीक है, एक बार ए चलाया, उसके बाद एक बार बी चल गया, उसके बाद फिर से ए चल गया, उसके बाद बी चल गया, एंड सो ऑन, कोई भी कॉम्बिनेशन, या बार बार ए को रिपीट करा रहे हैं, ए को रिपीट करा रहे हैं, फिर बी को रिपीट करा रहे हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है इससे, राइट। तो इसका मतलब इसके बाद ए बी का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, नल मूव चेक करना है, नल मूव है क्या, नहीं है। और व्हाट अबाउट द चॉइस, कहीं पे चॉइस है क्या, चॉइस भी नहीं दिख रही है। व्हाट अबाउट द डेड कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स सी द डेड कॉन्फ़िगरेशन। सो देयर इज ए डेड कॉन्फ़िगरेशन at state A or not, no, there is no dead configuration. Why? because A का भी ट्रांजिशन है, A का भी ट्रांजिशन है और B का भी ट्रांजिशन हो रहा है, तो कोई डेड कॉन्फ़िगरेशन A पे नहीं है। व्हाट अबाउट B, B से भी A का ट्रांजिशन है, B का ट्रांजिशन है, नो डेड कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट अबाउट C,
सी पे डेड कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं, बिकॉज ए का ट्रांजिशन भी है और बी का ट्रांजिशन भी है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज द फाइनल डीएफए। तो ये क्या बन गया? फाइनली हमारा डीएफए बन गया, एंड दैट डीएफए इज द मिनिमल डीएफए, राइट? दैट डीएफए इज द मिनिमल डीएफए, राइट? इट मीन्स ये वाली क्या बनेगी? मशीन बनेगी इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है? इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली मशीन बनेगी। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? Clear? Okay. Okay, fine. Now let's see the next thing. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है? लेंथ इज एट लीस्ट 2. इफ लेंथ इज एट लीस्ट 2, then how many states are there? 3. It means if length is at least 2, the number of states are, we can say, if length is at least 2, then number of states are 3. Okay, तो if length is that is greater than equal to 2, then states कितनी आ रही हैं? 2+1, ये 2+1 है ना? तो कितनी स्टेट बन रही है? 3. अगर लेंथ क्या होती? इफ लेंथ इज एट लीस्ट n, ये वाला दे रखा है, इफ लेंथ इज एट लीस्ट n, राइट? और वी कैन से लेंथ इज सॉरी लेंथ इज एट लीस्ट n, अगर ऐसा दे रखा है तो कितनी स्टेट बनेगी? दैट विल बी n+1. तो स्टेट्स कितनी बन जाएंगी? n+1 स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोई लैंग्वेज दे रखी है और उसमें क्या बोल रखा है? दैट स्ट्रिंग लेंथ इज एट लीस्ट n, string length is at least n, then number of states, so number of states are n+1, so number of states will be n+1. Yes, is it clear? Okay, clear. Yes, yes, या तो ए होगा या बी, ठीक है? यस, ओके. So finally this is the machine. Now let's see the next machine. So next machine we can say that all story is same, construct the minimal DFA and all. Okay, so directly मैं लिखता हूँ, ठीक है? वो सारी स्टोरी सेम है. कंस्ट्रक्ट द मिनिमल DFA where string length is at most 2. So here it is, string length is at most 2, right? String length is at most 2. So what is the meaning of string length at most 2? String length at most 2 means that w is a string, then we can say string length w, string length is less than equal to 2, right? So ये क्या रहेगा? that is the meaning of at most 2, ठीक है? तो ये क्या है? at most 2 का मीनिंग होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रहेगी? that will be at most 2. at most 2 means that string length will be, it can be 0 length, it can be 1 length, it can be 2 length, ठीक है? तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है? that can be of 0 length, that can be of 1 length, or that can be of 2 length, right? Now let's see the language. What can be the language? So corresponding this one, what should be the language? Language we can say it is a, it can be 0 length. 0 length means it can be epsilon, means null. After that 1 length, 1 length, it can be a,
और b. So here alphabets are a comma b. alphabets are a comma b. ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स a comma b दे रखे हैं। तो जीरो लेंथ में क्या होगा, दैट इज नल, और वन लेंथ में क्या हो जाएगा, इट इज a और b, और आफ्टर दैट टू लेंथ it can be aa, it can be ab, ba और bb. दिस इज व्हाट द स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू 2। तो ये स्ट्रिंग लेंथ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। तो दीज आर द स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या स्ट्रिंग बनेगी, ये वाली स्ट्रिंग बनेगी लैंग्वेज में। अब क्या करना है, नाउ विल ट्राई फॉर द मशीन। सो ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए। हाउ मेनी स्टेट्स विल बी देयर, टेल मी। Yes, try to find out, and how many states will be there. Okay, 3 states. Oh, 3 state may be right or wrong also. Oh, 2 is, I think, not right answer. 1 state, it is not answer, not a right answer. Okay, let me simplify. So here what we can say, these are the string in the language. One is the null, after that a, b, double b, triple a, sorry, it is ba and bb. Okay, okay, so these are the strings. Now let's try. जब भी कोई मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है तो पहला काम क्या है, विल ट्राई फॉर द मिनिमल स्ट्रिंग। तो मिनिमल स्ट्रिंग्स के लिए क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, विल ट्राई फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ मिनिमल स्ट्रिंग। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, विल ट्राई फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ मिनिमल स्ट्रिंग। पहले ट्राई करते हैं किसके लिए, नल के एक्सेप्टेंस के लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। So here it is initial state. Okay, this one is the initial state. So null का acceptance कब होता है, when there is a sorry, when we can accept the null. So when initial state is the final state, then it will accept the null. Okay, so when initial state is the final state, it will accept the null. तो इस केस में क्या करेगा, it will accept the null. तो null का acceptance कब होता है, when initial state is the final state. Next thing, from this state, let me say it is a state 1. From state 1, by reading a, okay, तो ये हो गया। second thing, it will accept a also. It means by reading a and it is going to next state, और यहाँ पे a को accept करेगा, it means this is the second state, और second state is the final state. तो यहाँ पे a को accept कर रहा है, yes. उसके बाद b को भी accept करे, let me write down comma b, so it is accepting b also. ठीक है, तो a को accept कर लिया,
इसको नल को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ए को एक्सेप्ट कर लिया, आफ्टर दैट इट हैज एक्सेप्टेड बी आल्सो. व्हाट अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ नेक्स्ट वन, दैट इज ए. AA means you can identify this pattern AA, AB, BA and BB. Already we have seen this pattern. It means again I will take one more state. This is the next state where I will take A comma B, and this is the again final state and third state. ओके, तो यहाँ से अब ये एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट करेगा, ए ए मीन्स हियर इट विल रीड ए, फ्रॉम दिस वन इट विल रीड ए एंड इट विल गो टू स्टेट नंबर 2, फ्रॉम स्टेट नंबर 2 इट विल रीड ए एंड इट विल गो टू द फाइनल स्टेट, राइट, इट विल गो टू फाइनल स्टेट एंड इट इज एक्सेप्टिंग ए. ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट ए बी, तो यहाँ से क्या करेगा, इट विल रीड ए, इस स्टेट से 1 से स्टार्ट करेगा और ए रीड करेगा और स्टेट नंबर 2 पे जाएंगे. उसके बाद क्या होगा, हमें बी को रीड करना है, सो स्टेट नंबर 2 से क्या करेंगे, बी को रीड करेंगे, यहाँ से बी को रीड कर लिया और फाइनल स्टेट पे चले गए. सो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग ए बी को एक्सेप्ट कर लिया. व्हाट अबाउट बी ए का मतलब यहाँ पे इधर से बी को क्या कर लिया, रीड कर लिया. सो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, बी को रीड करके स्टेट नंबर 2 पे चले गए. अब स्टेट नंबर 2 से क्या करना है, ए को रीड करना है. अब ए को रीड यहाँ से कर लिया, तो यहाँ से ए को रीड किया और ए को रीड करके कहाँ पे चले गए, फाइनल स्टेट पे चले गए. और फाइनल स्टेट पे जाने के बाद एक्सेप्ट हो गया क्या, बी ए, राइट. सो फाइनली बी ए भी एक्सेप्ट हो गया. अब बी बी का मतलब यहाँ से स्टेट नंबर 1 से स्टार्ट किया, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे हमेशा, राइट. तो यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद क्या किया, यहाँ से बी को रीड किया, बी को रीड कर लिया और कहाँ चले गए, स्टेट नंबर 2 पे चले गए. अब स्टेट नंबर 2 से क्या रीड किया, स्टेट नंबर 2 से अगेन बी को रीड किया, बी को रीड करने के बाद कहाँ पे, फाइनल स्टेट पे चले गए, राइट, थर्ड स्टेट पे चले गए, दैट इज द फाइनल स्टेट. और बी को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ से बी को एक्सेप्ट किया, यहाँ से बी और यहाँ से बी, मतलब बी को एक्सेप्ट कर लिया, राइट. तो फाइनली बी को भी एक्सेप्ट कर लिया. इट मीन्स इट हैज़ एक्सेप्टेड ऑल द स्ट्रिंग्स, सारी की सारी स्ट्रिंग्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. अब क्या वेरीफाई करना है, नाउ विल चेक दैट इट इज holding the property of DFA or not, or it is holding the characteristics of DFA or not. So first thing I will look about the choice, there is a choice or not, no there is no choice. ठीक है, तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं हो रही है. व्हाट अबाउट नल मूव, देर इज नो नल मूव. व्हाट अबाउट डेड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेट नंबर ए पे चेक कर, 1 पे चेक करते हैं. लेट्स सी, स्टेट 1 पे कोई डेड कॉन्फ़िगरेशन है क्या, नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज ए के कॉरस्पॉन्डिंग और बी के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों अल्फ़ाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, मीन्स देर इज नो डेड कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट अबाउट स्टेट 2, ऑन स्टेट 2 देर इज ए dead configuration or not, no. Why? Because there is a transition for A and as well as B, दोनों के लिए ट्रांजिशन है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या नहीं है, डेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, क्लास सॉरी स्टेट नंबर 3, यस ऑन स्टेट नंबर 3 देर इज ए डेड कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे क्या है, डेड कॉन्फ़िगरेशन है. तो कैसे रिमूव करेंगे डेड कॉन्फ़िगरेशन को, और किस वजह से डेड कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज here there is no transition for state there is no transition for A and B. A B के लिए कोई ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, there is a dead configuration. then how to handle dead configuration, right. तो dead configuration को कैसे हैंडल करेंगे, और इस केस में can we take loop, क्या लूप ले सकते हैं डेड कॉन्फ़िगरेशन हटाने के लिए, yes tell me, can we take loop of AB here to remove the dead configuration, can you tell me. राइट, सो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेक द लूप ऑफ ए बी. वाई, बिकॉज ए बी का लूप लिया तो ये क्या करेगा, यहाँ से ए रीड करेगा,
यहाँ से अगेन ए रीड करेगा, ए रीड कर लिया, और ए के बाद क्या आ सकता है, बी भी आ सकता है, डबल बी, ट्रिपल बी, ए बी एंड ऑन, ये सब आ सकता है। क्यों? यहाँ से इस लूप से क्या करेगा, लूप से नेक्स्ट टाइम बी को रीड कर लेगा, राइट, फिर बी को रीड कर लेगा, बी को रीड कर लेगा, ए को करेगा, बी को करेगा, राइट। तो कोई भी स्ट्रिंग बन जाएगी। क्या ये स्ट्रिंग बिलोंग करती है लैंग्वेज से? नहीं, ये स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लूप नहीं लगा सकते, राइट, ये लूप नहीं लगा सकते बिकॉज ये स्ट्रिंग यहाँ पे बिलोंग नहीं करती है लैंग्वेज से। अगर ये इसको एक्सेप्ट कर ले, ये वाला डीएफए इस लैंग्वेज को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, इस स्ट्रिंग को अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डीएफए गलत है ना। तो फाइनली क्या करना पड़ेगा, वी कैन नॉट टेक लूप हियर, ये वाला लूप नहीं आएगा, ठीक है। तो लूप नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, विल टेक द ट्रैप स्टेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल टेक द ट्रैप स्टेट, ठीक है। तो ट्रैप स्टेट क्या होती है, इट इज़ ए डेड स्टेट, ये डेड स्टेट में होती है, राइट। तो ट्रैप स्टेट क्या है, डेड स्टेट है। एक बार ट्रैप स्टेट में चले गए वहाँ से वापस नहीं जा सकते, और दूसरा कोई स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा, राइट। ट्रैप स्टेट पे चले गए तो वहाँ से वापस नहीं जा सकते, और दूसरा क्या होगा, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा, देर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग। Okay, so we can say after this one, if a is coming or b is coming, will go to the trap state, and on trap state also if a or b is coming, will go to the trap state. So finally this is what the minimal DFA for the above language. तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिनिमल DFA फॉर द अबव लैंग्वेज। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? नल वैल्यू नहीं, मैंने मूव बताया था, नल मूव, नल वैल्यू नहीं, नल मूव। नल स्ट्रिंग तो अलाउड है, ये तो स्ट्रिंग है। नल मूव का मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए ये इनिशियल स्टेट है और यहाँ से नल रीड करके कहाँ पे, किसी दूसरी स्टेट पे, स्टेट नंबर 1 से कहाँ चले गए, स्टेट नंबर 2 पे चले गए, ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना। यस, ओके। सो यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ओके फाइन। Okay, fine. Let's see the next one. Let's see the next machine. So next one we can say this machine number 5. So here we can say that construct the minimal DFA, construct minimal DFA where string length is exactly 2. Okay, string length is exactly 2. So we can say if w is the string, then string length of w, that is equal to 2, right, over the alphabet a comma b, or we can say that this w belongs to the a comma b, ठीक है, these are two alphabets. Then tell me how many states will be there in the machine. Okay, before that one, firstly tell me what will be the language, what will be the string in the language में string क्या क्या बनेगी?
So let me write down language. Yes, what will be the string in the language? Okay, it is A B B A or BB. Yes, it is correct answer. So string will be AA, BB, AB and BA. Okay, so these are the string possible, because string length is exactly 2, right? String length is exactly 2. It is AA, BA and it is AB and BA. Okay, so these are the string. So यहाँ पे string length क्या है? 2. Here also string length 2, here also string length 2, here also string length 2. So 4 ही combination बनेंगे 2 variables की help से, और we can say 2 alphabets की help से, right? So this is what the language. Then what should be the number of state in the DFA? मिनिमल DFA में नंबर ऑफ स्टेट कितनी बनेगी? Total number of states are 4. Yeah, 4 may be the right answer. Let's see. So number of state, that may be 4, and that is the right answer, I think. Let's see. So till this part we know, in the earlier question also and before that one also, that AA, BB, AB and BA, this is the same pattern. For this pattern, what will be the machine? We can say here it is the initial state. So हमें क्या करना है? सेम थिंग्स कि मिनिमल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करनी है. दीज आर द मिनिमल स्ट्रिंग्स, इनको एक्सेप्ट कराएंगे, राइट? सो हियर इट कैन बी like state number 1, state number 2, and here it is state number 3, and this is the final state. So here we can say A comma B, and here it is A comma B, right? Now if it is AA means from this one it will read A, and here it is will read A, so it will accept AA. Okay, after that from this one it will read B, from this one it will read B, and it will go to final state and it is accepted. So here it is BB. From this one, what about AB means from this one it will read A, and from this one it will read B. तो यहाँ से B रीड करेंगे तो AB को एक्सेप्ट करेंगे. व्हाट अबाउट B है? तो स्टेट नंबर 1 से क्या किया? यहाँ से B को रीड किया और उसके बाद कहाँ चले गए? स्टेट नंबर 2 पे चले गए. और स्टेट नंबर 2 से क्या रीड किया? A को रीड किया और उसके बाद कहाँ मूव कर गए? स्टेट नंबर 3 पे. और स्टेट नंबर 3 क्या है? दैट इज द फाइनल स्टेट. तो फाइनल स्टेट पे क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है, मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे AA, BB, AB और BA इन सब को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. उसके बाद क्या होगा? डेड कॉन्फ़िगरेशन. इस वाली पे डेड कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं. दोनों अल्फ़ाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन है. स्टेट नंबर 2 पे डेड कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं, बिकॉज दोनों पे क्या है? ट्रांजिशन है. इसका मतलब यहाँ पे यस, यहाँ पे डेड कॉन्फ़िगरेशन है. तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लूप अगर लें तो फर्दर स्ट्रिंग बनेगी, राइट? और जो कि बिलोंग नहीं करेगी लैंग्वेज से. इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें एक ट्रैप स्टेट बनानी पड़ेगी. सो लेट मी टेक ट्रैप स्टेट.
और यहाँ से ए रीड करेंगे या बी रीड करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, ट्रैप स्टेट पे। और ट्रैप स्टेट पे भी क्या होगा, अगर ए आता है या बी आता है, वो कहाँ पे चला जाएगा, ट्रैप स्टेट पे चला जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, दिस इज द मिनिमल डीएफए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, मिनिमल डीएफए। तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ए को एक्सेप्ट करेगा, बी को, ए बी को, और बी को एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा मान लीजिए कि ए आता है, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से क्या किया, ए रीड किया और स्टेट नंबर 2 पे चले गए। उसके बाद क्या किया, यहाँ से बी रीड किया, स्टेट नंबर 3 पे चले गए। और फिर यहाँ से ए रीड किया और ट्रैप स्टेट पे चले गए। और ट्रैप स्टेट पे क्या होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्ट कर देगी इस स्ट्रिंग को। तो ये स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करती, इट इज़ रिजेक्टेड।